تمہاری بہن بہنوئی ہونے کے ناطے کتنی رسپیکٹ دیتی ہے یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور آئندہ اپنی بہن کو میری مدر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میرے ڈیڈ کی سیکنڈ وائف ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ رہی عزت سے پیش آنے کی بات تو ڈارلنگ، میں تمہارا خیال کر کے اس کا لحاظ ہی کر جاتا ہوں، ورنہ یقین مانو اس قابل نہیں کہ اس سے عزت سے پیش آیا جائے۔ آزاد نے اتنے نارمل انداز میں حنین سے کہا، اسے آزاد کی بات سن کر آگ ہی لگ گئی۔ اگر اتنی ہی نفرت کرتے ہو میری بہن سے، وہ تمہیں اتنی ہی زہر لگتی ہے، تو پھر اس کی بہن سے شادی کیوں کی تم نے؟ حنین اب سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا اس کا ٹمپریچر آزاد کی باتیں سن کر مزید بڑھ جائے گا۔ کیا کرتا، میرے دل اور دماغ پر قبضہ جو جما بیٹھی تھی تم، بری طرح سے۔ دل ہر وقت تمہارے ساتھ کی چاہ کرنے لگا۔ دماغ نے کہا، بیٹا آزاد، اسے گرل فرینڈ بنانے کی بجائے ڈائریکٹ بیوی بنا لے۔ حنین کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اطمینان سے بولا۔ حنین اب بھی اسے خاموشی سے گھورے جا رہی تھی۔ اب اس لیے تو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں کہا کہ غصے میں تم گھورتی رہو، تھوڑا پیار سے بھی دیکھ لو یار، شوہر ہوں تمہارا۔ حنین کے گھورنے پر اب کی بار آزاد اپنے لہجے میں شوخی سماتا ہوا بولا، جس پر بھی حنین کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اب بھی آزاد کو گھور رہی تھی۔ اچھا یار، منہ ٹھیک کرو اپنا۔ آزاد صوفے سے تھوڑا کھسک کر اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اب وہ اسمائل دے کر حنین کو دیکھ رہا تھا۔ اب کی بار آزاد کے دیکھنے پر حنین نے اپنی نظریں جھکا لی۔ گھر چھوڑ کر آؤ، مجھے آپ ہی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ آزاد کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، میرا موڈ تمہاری بہن کی وجہ سے 10 دن سے خراب ہے، آج رات تھوڑا اسے بھی پریشان ہونے دو، کل چلیں گے۔ آزاد دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو حنین اسے گھورنے لگی۔ وہ اس کے گھورنے کا نوٹس لیے بغیر اس کا ماتھا اور گردن چھو کر دیکھنے لگا۔ اب آزاد کو سمجھ میں آیا اس کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں لگ رہا تھا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، تم بخار چڑھا کر میرے پاس آئی ہو، جبکہ میرا آج رات بھی کل کی طرح ایک ساتھ بات لینے کا ارادہ تھا۔ آزاد اسے شکوہ کرتا ہوا بولا، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے واپس گھر لے کر چلو۔ آزاد کے خطرناک عزائم دیکھ کر حنین کو گھر جانا ہی ٹھیک لگا۔ ویسے بھی نوین نہ جانے اس کے بارے میں اب تک کیا کیا سوچ چکی ہوگی۔ اب کی بار دایا ایک بار بول دیا نا، اب بار بار نہیں بولوں گا، کل چلیں گے مطلب ہم گھر کل ہی چلیں گے، اب مزید کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ اب کی بار وہ لہجے میں تھوڑی سختی لاتا ہوا بولا اور حنین کو بازو میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا۔ بریک فاسٹ کیا تھا تم نے خود بیڈ پر بیٹھ کر؟ وہ دوبارہ حنین کا ماتھا چھوتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم تھا، آپ ہی کو مجھے پنڈی بھیجنے کی چلتی تھی، تم یہاں لائے ہو تو تمہیں روب جھاڑنے سے فرصت نہیں ہے، میری طبیعت خراب ہو یا میں صبح سے بھوکی ہوں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے میری۔ حنین بیڈ پر لیٹی ہوئی خفا خفا سی اسے شکوہ کرنے لگی، روم میں آنے والی تم شے ہو؟ آزاد اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا اٹھا اور اپنا کوٹ اتار کر وارڈ روم میں ہینگ کرتا ہوا آستین کے بٹن کھول کر کف فولڈ کرتا ہوا بیڈ روم سے نکلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ حنین اس کو روم سے نکلتا دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہارے الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ آزاد حنین کو دیکھ کر کہتا ہوا روم سے نکل گیا۔ حنین آنکھیں بند کیے بیٹھ کر لیٹی رہی، اسے یوں ہی ریلیکس لیٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ 20 منٹ بعد روم کا دروازہ کھلا تو آزاد ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر آیا، لازمی وہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر لایا تھا۔ بے ساختہ حنین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ آزاد ٹرے سائڈ پر رکھتا ہوا حنین کے مسکرانے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں ایک نکچڑی اور مغرور انسان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ میرے لیے ناشتہ بھی بنا سکتا ہے۔ حنین آزاد کو دیکھتے ہوئے بولے تو آزاد مسکرایا، میری تعریف کرتے ہوئے کافی کنجوسی سے کام لیا تم نے، بدتمیز، بیہودہ، چھچورا، بے شرم اور ڈھیٹ کہنا تو تم بھول ہی گئی۔ آزاد ٹرے میں سے پلیٹ اٹھا کر بولا جس میں بوائلنگ ایگ پیسز کی شکل میں رکھے ہوئے تھے، وہ فورک کی مدد سے حنین کو کھلانے لگا۔ ایک لفظ تم بھی اپنی شان میں کہنا بھول گئے ہو جو کہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے تم پر۔ حنین اس کے ہاتھ سے نوالا کھاتے ہوئے بولے تو آزاد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، منہ پھٹ۔ حنین اپنی مسکراہٹ چھپاتی ہوئی سنجیدگی سے بولی تو آزاد اب کی بار ہنسا، یہ تو آدھی دنیا مجھے کہتی ہے، اور ایک لفظ اور بھی میری شخصیت کا خاصہ کرتا ہے، اور وہ لفظ ہے ضدی۔ آزاد اگر ضد میں آ جائے تو اپنی منوا کر چھوڑتا ہے۔ آزاد اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوا ساست جتانے لگا، زبردستی نگاہ کر کے تم یہ مجھ پر واضح کر چکے ہو۔ حنین نے فورک سے اس کے ہاتھ سے لے کر واپس پلیٹ میں رکھا، پلیٹ لے کر ٹرے میں رکھی۔ نکاح ضد میں نہیں کیا جاتا، آزاد حنین کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، معلوم ہے انتقام کے لیے کیا جاتا ہے۔
حنان طنزیہ انداز میں بولی، غلط، نکاح محبت میں کیا جاتا ہے۔ اذہان اس کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا۔ محبت کے اظہار پر حنان کی پلکیں بے ساختگی جھک گئی۔ اذہان خاموشی سے حنان کو دیکھتا رہا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ حنان میں نے خیز خاموشی سے گھبرا کر اسے یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ لوگ بہت بے حس ہیں بھائی، سب کو اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ مجال ہے جس نے ناشتہ بنایا ہو جھوٹے منہ اس سے بھی پوچھ لیا جائے۔ حنان کو بھرپور طنز میں لیکچر دیا گیا تھا۔ جس طرح حنان نے اسے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے تم صبح گھر سے ناشتہ کر کے آفس روانہ ہوئے تھے۔ حنان منہ بنا کر بولی۔ تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کی آفر کرتی تو میں ہرگز انکار نہیں کرتا۔ آزاد اس کو ایک بار پھر شرمندہ کرتا ہوا بولا۔ اگر اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے ناشتہ کرنے کے لیے اتنا ہی تڑپ رہے تھے تو خود سے کر لیتے۔ حنان نے ٹرے میں سے پلیٹ اٹھائی جس میں سکے ہوئے ٹوسٹ رکھے تھے اور اذہان کی طرف بڑھائی۔ ایسے نہیں جیسے میں نے ابھی اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا۔ اس کی فرمائش سن کر حنان نے آنکھیں گول گھمائی اور بریڈ کا پیس اٹھا کر اذہان کی طرف بڑھایا، جسے اذہان نے دانتوں سے پکڑ کر حنان کا ہاتھ بریڈ سے ہٹایا۔ اب وہ انگلی کے اشارے سے حنان کو قریب کرنے کو کہہ رہا تھا۔ حنان اپنا چہرہ اذہان کے قریب لائی تو اذہان نے منہ میں پکڑی ہوئی بریڈ کی طرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ حنان مسکرائی، پھر اس نے بغیر بریڈ کو ہاتھ لگائے دوسرے سائڈ سے بریڈ کے پیس کی بائٹ لی۔ ایسا کرنے کے بعد وہ دونوں ہی اس فلمی سی حرکت پر ہنس رہے تھے۔ جی ڈیڈ، خیریت ہے؟ ناشتے کے بعد اذہان نے حنان کو میڈیسن دی جس سے وہ آدھے گھنٹے سے کافی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ تبھی اذہان کا موبائل بجا۔ خیریت، تم رہنے کہاں دیتے ہو؟ 2 دن سکول سے گزرتے ہیں پھر تمہیں کوئی نہ کوئی تماشا لگانا ہوتا ہے۔ اذہان کی بات سن کر شاہنواز طنزیہ انداز میں بولا۔ تماشا میں نے نہیں، تماشا آپ کی دوسری بیوی نے لگایا ہے، جبکہ اس کی گئی کارروائی کا جواب میں نے ابھی تک دیا نہیں ہے۔ اذہان دوسرے روم میں آ کر صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ شٹ اپ اذہان، تم نے جو پچھلے 10 دن سے نوین کے ساتھ رویہ رکھا ہے سب علم ہے مجھے۔ میں تمہیں اس سے بدتمیزی کرنے یا بدکلامی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ تم ابھی اور اسی وقت حنان کو لے کر گھر پہنچو۔ شاہنواز اب سخت لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا۔ او ہو، تو اب اس نے میرے خلاف آپ کے کان بھر کر آگ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ویسے ہنی کو لے کر میں آج گھر نہیں آ رہا ڈیڈ، اور اگر کسی نے یہاں پر میرے فلیٹ میں آنے کی کوشش کی تو میں حنان کو لے کر امریکہ شفٹ ہو جاؤں گا۔ شاہنواز کی بات سن کر اظہار نے کال کاٹی اور واپس بیڈ روم میں آیا جہاں حنان ابھی بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کا کمفرٹر درست کرتا ہوا اظہار بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ ادھر چلی میں ادھر چلی، جانے کہاں میں کدھر چلی، قومی پھسل گئی لان میں ڈالی گئی تازہ کھاد میں سے، جس میں پانی ڈال کر اسے خوب کیچڑ بنایا گیا تھا۔ کومل گانے کے سٹیپ کے مطابق ویسے ہی ایکٹ کرتی ہوئی ننگے پاؤں کھاد میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، اور پھسلنے والے جملے پر جب وہ جھوٹ میں پھسلنے کی ایکٹنگ کرنے لگی تو سچ میں ہی پھسلنے لگی، مگر بروقت عباس نے اسے آ کر تھام لیا۔ میری آنکھیں ترس گئی ہیں قومی بیبی کو کوئی اچھا ڈھنگ کا کام کرتا دیکھنے کے لیے، عباس کا ہاتھ پکڑ کر کیچڑ سے نکالتا ہوا حسرت سے بولا۔ قومی بیبی کو بہت اچھے کام آتے ہیں، وہ ایک تتلی بن کر اڑ سکتی ہے اور منکی کی طرح اچھل اچھل کر ڈانس کر سکتی ہے، کھانا کھانے میں تم سے ریس لگا سکتی ہے اور تمہاری ان مونچھوں کو بھی اڑا سکتی ہے۔ کومل نے عباس کے ساتھ انیکسی کا رخ کرتے ہوئے اپنے سارے کارنامے بتائے، مگر آخری والی بات پر عباس نے برا مانتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم کیا ہر وقت میری مونچھوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو آنٹی؟ اپنی مونچھوں کا مذاق مجھے ذرا پسند نہیں ہے، عباس کومل کو گھورتا ہوا کہنے لگا۔ دیکھو اب تم آنٹی کہہ کر فائٹ کر رہے ہو قومی بیبی سے۔ کومل کی بات پر عباس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اوکے چھوٹی بیبی، مجھے معاف کر دو، شرافت سے اپنے گھر جاؤ، تمہارے گندے پاؤں سے یہاں سارا فرش خراب ہو جائے گا۔ عباس بغیر کسی مروت کے کومل سے بولا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم قومی بیبی کو گود میں اٹھا کر یا پھر اپنے شولڈر پر بٹھا کر اندر لے جا سکتے ہو، فرش خراب نہیں ہوگا، ویسے بھی قومی چھوٹا سا بیبی ہے۔ کومل اسے ایک نیا آئیڈیا دیتی ہوئی بولی جس پر عباس کو ہنسی آئی۔ ایسا بھی کوئی چھوٹا بیبی نہیں ہے جسے گود میں اٹھا لیا جائے، خود اپنے پاؤں سے چل کر اندر آ جاؤ۔ عباس نیکسی کے اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ کومل اس کے پیچھے صاف ستھرے فرش پر اپنے پاؤں بناتی ہوئی اندر آ گئی۔ جاؤ واش روم کے اندر جا کر اچھی طرح اپنے پاؤں واش کر کے آؤ، میں کارٹون کی سیریز لایا ہوں پھر کارٹون دیکھتے ہیں۔ عباس اسے واش روم کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تو وہ روحانسی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ قومی بیبی کو تو پاؤں واش کرنے نہیں آتے، وہ تو کوثر آنٹی کرواتی ہے نا، کومل عباس کو دیکھتی ہوئی معصومیت سے بتانے لگی۔ ٹھیک ہے پھر میں کوثر کو بلا کر لاتا ہوں۔ عباس روم سے جانے لگا۔ کوثر آنٹی تو چھٹی لے کر چلی گئی اپنے گھر۔ کومل کی بات پر عباس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم کرا دو نا قومی بیبی کے پاؤں واش، تم تو اچھے والے فرینڈ ہو نا قومی بیبی کے۔ اپنے گندے پاؤں دیکھ کر اب کومل کو بھی الجھن ہو رہی تھی، تبھی وہ عباس کو مکھن لگاتے ہوئی بولی۔ عباس نے اسے گھور کر دیکھا۔ چلو آؤ۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا واش روم کے اندر گیا۔ کومل اگر اب تم ذرا بھی ہلی تو تمہیں اٹھا کر میں اس پانی سے بھرے ٹب میں پھینک دوں گا، سیدھی طرح کھڑی رہو۔ عباس کی دھمکی سن کر وہ ایک دم اسٹریٹ ہو کھڑی ہو گئی۔
वैसे अगर तुम कौमी को पानी में फेंकोगे तो कौमी बेबी फिश बनकर पानी में स्विमिंग भी कर सकती है। कोमल उसकी मालूमात में इजाफा करने लगी। कौमी सारी उड़पड़ांग काम कर सकती है, मजाल है जो कोई काम ढंग का कर ले। अच्छी तरह पाँव पर सोप मिलने के बाद वह हैंड शावर से पानी का प्रेशर उसके पाँव पर डालता हुआ बोला, चलो आराम से जाकर सोफे पर बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब्बास कोमल को बोलता हुआ अब अपने हैंड वॉश करने लगा। कोमल सादतमंदी से सर हिलाते हुए वॉशरूम से बाहर निकल गई। अब्बास रूम में आया तो कोमल सोफे पर बैठी हुई रिमोट हाथ में पकड़े चैनल सर्च करने में मसरूफ थी। अब्बास उसको वहीं छोड़कर लिविंग रूम में आ गया ताकि कोमल के बने हुए पाँव के नक्शे फर्श से साफ कर सके। मॉप से सफाई करने के बाद जब अब्बास रूम में आया तो सामने स्क्रीन पर चलता हुआ सीन देखकर वह एकदम ठटक गया। हनैन की आंखें खुली तो उसने अपने करीब आज़ाद को सोता पाया। नहायत आहिस्तगी से उसने आज़ाद का हाथ अपने ऊपर से हटाया। वो उठकर बैठ गई और घड़ी में टाइम देखने लगी। दोपहर के 3 बज रहे थे। वह काफ़ी देर तक सो चुकी थी, इसलिए कसलमंदी से बेड से उठी। बुखार उसका उतर चुका था। उसका इरादा अब शावर लेकर फ्रेश होने का था। हनैन ने अपने पहनने के लिए ड्रेस निकाला। अचानक उसे नवीन का ख्याल आया। जो भी था, नवीन उसके लिए परेशान हो रही होगी। ये सोचकर वो अपने बैग में से मोबाइल तलाश करने लगी, मगर मोबाइल बैग में मौजूद नहीं था। उसने घूर कर सोते हुए जहाद को देखा। लाजमी उसने सोने से पहले उसका मोबाइल बैग से गायब किया होगा। हनैन ने सर झटक कर कपड़े बेड पर रखे और रूम से बाहर निकल गई। ये फ्लैट ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर जदीद तर्ज का बना हुआ फर्निश्ड फ्लैट था। वह कपड़ों का जायज़ा लेने के बाद किचन में आई, जहाँ फ्रिज और ओवन दीवार में नस्ब थे। किचन में ही एक तरफ छोटा सा रेक मौजूद था जिसमें मुख्तलिफ बोतलें तरतीब से रखी हुई थी। हनैन ने एक बोतल उठाई। बोतल पर शैम्पेन का लेबल देखकर हनैन का दिल ख़राब होने लगा। ऐसी नजस चीज़ वो तो अपने घर के डस्टबिन में भी न डाले, और जहान उसे किचन में रखा हुआ था। वो ड्रिंक करता था, ये बात हनैन को पहले से मालूम थी। उसका दिल ख़राब होने लगा। यहाँ क्यों आ गई? क्या फिर से भूख लगी है? हनैन को अपनी पुश्ते जहाद की बात सुनाई दी। हनैन ने पलट कर जहाद को देखा। जहाद की नज़र हनैन के हाथ पे शैम्पेन की बोतल पर पड़ी। वो चलता हुआ हनैन के पास आया। उसके हाथ से बोतल लेकर वापस रेक पर रखता हुआ हनैन का हाथ थामकर वापस उसे रूम में ले जाने लगा। मगर हनैन ने उसके साथ अपने कदम नहीं बढ़ाए तो अजहार ने उसको मुड़ कर देखा। तुम्हें मालूम है शराब हमारे मज़हब में हराम है? हनैन उससे अपना हाथ छुड़ाकर संजीदगी से पूछने लगी। ये शराब नहीं है, चलो रूम में। अजहार नॉर्मल अंदाज में कहता हुआ उसकी बात टालता हुआ बोला, तुमने मुझे कोई छोटा बच्चा समझ रखा है या फिर बेवकूफ़ लगती हूँ मैं तुम्हें? ड्रिंक करते हो तुम, मैंने एक बार पहले भी नोट किया है। हनैन अपना गुस्सा दबाती हुई मगर नाराज़गी से बोली, मैं कह रहा हूँ नहीं है ये शराब, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? आज़ाद अपनी बात सही साबित करने के लिए लहजे में सख्ती लाता हुआ बोला तो हनैन उसे मलामत भरी नज़रों से देखने लगी। फिर इकरार में सर हिलाकर रेक से दोबारा बोतल निकाली। हनी, ये बोतल बंद करके वापस रखो और रूम में चलो। आज़ाद ने जो उसे बोतल का कैप खोलते देखा तो वो बहुत सीरियस होकर उससे बोला, मगर हनैन ऐसी हो गई जैसे उसने आज़ाद की बात सुनी ही ना हो। वो एक छोटे साइज़ का गिलास निकाल कर बोतल में मौजूद महलूल गिलास में डालने लगी। हनी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये गिलास और बोतल वापस रख दो। अजहार ने सख्त लहजे में कहने साथ उसे घूरकर गुस्से में देखा था। वाइन से भरा हुआ गिलास जब वो अपने मुंह तक ले जाने लगी तब अजहार ने जोर से गिलास पर हाथ मारा, जो सीधा दीवार पर जाकर लगा। एक दफ़ा की बात समझ में नहीं आती तुम्हें? क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? अजहार अब गुस्से में चीखता हुआ हनैन का बाजू पकड़कर उसे खींचता हुआ बेडरूम में लेकर आया। झटके से बेड पर बिठाया। जब तुम्हें मालूम है कि वो वाइन है तो क्यों मुंह लगा रही थी? टेम्परेचर हो रहा है पहले ही, तुम्हें 2 घूंट भी मुंह में जाते तो इतनी तबीयत ख़राब होती, सीधी दिमाग पर चढ़ जाती। अब हाथ उसके सर पर खड़े होकर उसको बातें सुना रहा था। यही तो मैं तुम्हें कह रही थी कि ये वाइन है, तुम ही इनकार कर रहे थे। वाइन एक हराम चीज़ है, इसको तुम कैसे मुंह लगा लेते हो अजहार? मैं भी कोई बहुत अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, मगर एक मुसलमान होने के नाते हमें हलाल और हराम चीज़ में तमीज़ करनी चाहिए। ड्रिंक करना छोड़ दो अजहार, ये बहुत बुरी आदत है। हनैन अजहार को देखते हुए बहुत प्यार से बोलने लगी, कोई आदी वादी नहीं हूँ मैं, ड्रिंक करने का ना ही कोई शौक़ है मुझे, सिर्फ फंसी को आदत है। मैं और मुकर्रम उसका साथ देते हैं कभी कभी और बस। आज़ाद बेड पर हनैन के बराबर में बैठा हुआ नॉर्मल लहजे में बोलने लगा, कोई ज़रूरत नहीं उनका साथ देने का भी, मुझे तो तुम्हारे दोस्त भी एकांत नहीं भाते हैं। आज तुम मुझे एक बात सच सच बताना, तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया तो तुम्हारी ज़िंदगी में मैं तुम्हारे लिए कितनी वैल्यू रखती हूँ? हनैन बेड से उठकर उसके सामने खड़ी होकर पूछने लगी। इजहार ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठाया, उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल किए। तुम्हें अब तक अपनी वैल्यू का खुद अंदाज़ा नहीं हुआ? गर्लफ्रेंड बनाने के बजाय बीवी बनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है मैंने तुम्हें। आज़ाद अपने एक हाथ उसके गाल पर रखता हुआ बोला, ठीक है, जब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी इतनी ही वैल्यू है तो फिर मेरी बात की भी वैल्यू होनी चाहिए। तुम अब कभी भी ड्रिंक नहीं करोगे। वो बहुत प्यार से अपनी बात आज़ाद से मनवा रही थी। आज़ाद को उस पर ही प्यार आने लगा। वो स्माइल देता हुआ उसको लेकर बेड पर गिरने के अंदाज में लेटा। हनैन के सारे बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। आदतों से जान छुड़ाना मुश्किल होता है, मुझे वाकई ड्रिंक करने की आदत नहीं है।
मैं अब कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा शराब को, पक्का। अब तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में मेरी कितनी वैल्यू है। उसके बाल अपने चेहरे से हटाता हुआ उसके कानों को पीछे करके पूछने लगा। अगर मेरी लाइफ में तुम्हारी वैल्यू नहीं होती तो मैं आप ही के भेजने पर आराम से पिंडी चली जाती। यूँ अपनी आप ही से गद्दारी नहीं करती, तुम्हें इन्फॉर्म करके। समझो मैंने तुम्हें तुम्हारी वैल्यू का बताया है, मगर मजीद कोई तुम्हारी उल्टी सीधी बात मानकर मैं कोई दूसरा सबूत नहीं देने वाली तुम्हें। हनैन आज़ाद को देखती हुई कहती हुई उसके सीने पर से उठी और बेड से अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम जाने लगी। आज़ाद बेड से उठकर हनैन के पीछे से हक करता हुआ बोला, सबूत मांग कौन रहा है? मुझे जो चाहिए होगा मैं बिना मांगे तुमसे खुद ले सकता हूँ। अब वो हनैन को ऊंचा उठाकर वापस बेड पर लाया। आज़ाद छोड़ो, मुझे वॉशरूम जाना था। हनैन उसे अपना आप छुड़ाती हुई बोली, मगर उसे बेड पर लिटाकर इस पर झुक चुका था। आखिर क्यों जाना होता है तुम्हें इतना वॉशरूम? आज ये राज बता ही दो। वो चेहरे पर संजीदगी लाए बिल्कुल सीरियस होकर हनैन से पूछ रहा था। फजूल बातें नहीं करो, बात लेना था मुझे, हनैन उसे घूरती हुई बोली। फजूल की बातों में तो मैं अपना टाइम ज़ाया ही नहीं करना चाहता। अब बात तुम 1 घंटे बाद ले लेना, मेरा नशा उतार कर हुआ। हनैन के स्वेटर के बटन खोलकर उसका स्वेटर उतार चुका था। अब वो अपनी शर्ट उतार रहा था। हनैन के पहने हुए टॉप का गला काफ़ी गहरा था और स्लीवलेस न होने के बराबर। वो झिझकती हुई गला ऊपर करने लगी। आज़ाद, तुम क्या करने लगे हो? हनैन को अपनी खैरियत महसूस नहीं हुई जब भी वो घबराती हुई बोली, तुम्हें बंद कली से खिलता हुआ गुलाब बनाने लगा हूँ। टॉप ऊपर करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं आज पूरी गहराई में उतर कर जायज़ा लूँगा। आज़ाद जितने नॉर्मल अंदाज में बोल रहा था उसकी बात सुनकर हनैन के होश उड़ गए। अब वो शोल्डर से हनैन की शर्ट नीचे कर चुका था। हनैन की हवाइयाँ उड़ने लगी जब उसने झुककर हनैन की गर्दन पर अपने होंठ रखे तो हनैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो हनैन के शोल्डर पर अपने हाथों से दबाव डालता हुआ अब उसकी कलाइयाँ अपने हाथों में जकड़ चुका था। दीवानावार उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की महरें जब्त करता हुआ उसने मजीद फासला तय किया। आज़ाद प्लीज़। उसकी बढ़ती जुर्रत पर हनैन अपने हाथ उसके हाथ से आज़ाद करवाते हुए बेसाख्ता बोली। वो उसके सीने से अपने होंठ हटाता हुआ हनैन को देखने लगा। अब क्या मसला हो गया तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें सुबह कहा था मैं ज़िद पर आ जाऊँ तो अपनी मनवा कर रहता हूँ। अब तो मुझे मना करके या रोक के हर ज़िद हरगिज़ मत दिलाना। आज़ाद के लहजे में कहीं से भी शोखी या मजाक की रमक नहीं थी, वो बिल्कुल सीरियस था। हनैन ने अपनी आंखें झुका ली। अब ये मत बोलना कि तुम मेंटली तैयार नहीं हो। हनैन की आंखें झुकाने पर वो मजीद बोला, अभी हमारे बेडरूम्स एक नहीं हैं, जब तक हमारे बेडरूम्स एक नहीं हो जाते तब तक ये सब। हनैन उसे देखकर दोबारा नज़रें झुकाते हुए आहिस्ता से बोली तो आज़ाद उसे हैरत से देखने लगा। सिर्फ यही बात है या फिर कुछ और? आज़ाद अब उसका चेहरा ऊपर करके पूछने लगा। यही बात है, और क्या बात होगी? नैन को नवीन का भी ख्याल था, मगर वो बोली कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कल जब हम घर जाएंगे इसके बाद अलग अलग बेडरूम में रहेंगे? कल से तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में रहोगी। वो हनैन को बोलता हुआ उसके होंठों पर झुका और दीवाना और अपने सांसों की खुशबू उसकी सांसों में मुंतकिल करने लगा। आज़ाद के अंदाज में बहुत शिद्दत थी। हनैन को अंदाज़ा हो गया अगर उसने बेलगाम घोड़े की लगामें खींचने की कोशिश की तो वो उसके साथ बहुत सख्ती बरतेगा। अब वो आज़ाद की उंगलियों के लम्स अपने पेट पर महसूस कर रही थी। जान उसकी तब निकली जब उसके कैपरी का बटन खुला। आज़ाद हटो पीछे। हनैन उसे पीछे हटाते हुए बोली, क्या मसला है यार हनी तुम्हारे साथ? आज़ाद बाकायदा आंखें दिखाता हुआ हनैन को घूरने लगा। क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? साफ महसूस हो रहा है फ्लैट में कोई आया है। हनैन को उसकी मदहोशी पर हैरत हुई। हनैन की बात सुनकर आज़ाद के मूड पहले से भी ज़्यादा ख़राब हुआ था। तुम यहीं रुको। आज़ाद अपनी शर्ट पहनता हुआ हनैन को बोलकर बेडरूम से बाहर निकला। अबे तू यहाँ पहले से मौजूद है? फसी आज़ाद को देखता हुआ खुश होकर बोला। तुम दोनों यहाँ कैसे? आज़ाद फसी और मुकर्रम को देखता हुआ पूछने लगा। इस वक्त वो दोनों से कितने मनहूस लग रहे थे वो चाहकर भी इन्हें नहीं बता सकता था। आज आज़ाद को अफसोस हुआ कि उसने अपने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी इन दोनों गधों को क्यों दी। इस साले का आज पीने का प्रोग्राम बन गया तो मुझे भी घसीट लाया। हम तुझे भी कॉल करके बुलाने वाले थे। मुकर्रम आज़ाद को देखता हुआ बोला। ओके, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आता हूँ। आज़ाद इन दोनों को बोलता हुआ वापस बेडरूम में हनैन के पास आया और बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया। हनैन दोबारा अपने स्वेटर में मौजूद थे चूँकि वो बाहर होने वाली गुफ्तगू सुन चुकी थी, इसलिए आज़ाद को नाराज़ नज़रों से देख रही थी। अब तुम ऐसे मत देखो, मैंने थोड़ी ना बुलाया है इन दोनों को। आज़ाद हनैन की नज़रों को देखता हुआ कहने लगा। बुलाया नहीं है, मगर उन्हें बता तो सकते थे कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ मौजूद हो। इस घटिया काम के लिए तुम ये फ्लैट यूज़ करते हो। हनैन मुलामत भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, यार क्या मैं मुंह उठाकर कहूँगा कि मेरी बीवी साथ आई और हम इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे? तुम दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब ज़्यादा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे आगे। सिर्फ ये बताने आया हूँ इसी रूम में रहना। 1 घंटे में फारिग होकर
करके आता हूँ इन दोनों को। आज़ाद हनैन को बोलता हुआ रूम से जाने लगा। 1 घंटे में? हनैन की आवाज़ पर पलट कर उसे देखने लगा। उसे घूर कर देख रही थी। आज़ाद मुस्कुराता हुआ वापस उसके पास आया। 20 मिनट में इन दोनों को फारिग करके तुम्हारे पास आता हूँ, फिर तुम्हारे घूरने का सही से इलाज करता हूँ। वो हनैन को जोर से गाल पर किस करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आज़ाद जब ड्राइंग रूम में पहुंचे तो फसी मुकर्रम सोफे पर बड़े जमान थे। सामने टेबल पर वाइन की बोतल और गिलास पहले से मौजूद थे। क्या कोई और भी है तुम्हारे अलावा फ्लैट में? मुकर्रम ने आज़ाद को रूम में आता देखकर सवाल किया। हाँ, हनी के साथ आया था सुबह। आज़ाद सोफे पर बैठता हुआ बताने लगा, जिस पर दोनों आज़ाद को देखने लगे। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम दोनों? अपनी बीवी के साथ आया हूँ, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं। आज़ाद टेबल पर रखी मुकर्रम के सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाल कर लाइटर से जलाता हुआ बोला। फिर तो ये वाला प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मुकर्रम शराब की बोतल की तरफ इशारा करता हुआ बोला। अभी अच्छा ना लगने की क्या बात है, भाभी कौन सा यहाँ कमरे में मौजूद हैं। वैसे भी उसकी शादी के बाद से एक साथ बैठे ही नहीं हम तीनों। अब तो ऐसे बोलकर मूड नहीं ख़राब कर। फंसी बारी बारी गिलास में शराब निकालता हुआ मुकर्रम को बोला तो चुप हो गया। मैं नहीं पीऊँगा, आज मूड नहीं है। फंसी ने जब तीसरा गिलास भरना शुरू किया तो आज़ाद बोला, यार अब तो मूड ख़राब कर रहा है। फंसी आज़ाद को देखता हुआ बोला, सीरियसली यार बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, तुम दोनों पियो, आज मैं बातों में कंपनी दूंगा। अजहर सिगरेट पीता हुआ बोला। थोड़ी देर पहले तो उसने हनैन को आइंदा ड्रिंक करने से मना किया था। सिर्फ बातों की कंपनी में मज़ा नहीं आता। उठा यार गिलास, नखरे मत दिखा। मुकर्रम अपना गिलास पकड़ता हुआ बोला, छोड़ यार इसको, ये अपनी बीवी से डर रहा है और कोई बात नहीं है। फंसी गिलास होंठों से लगाता हुआ मुकर्रम को आंख मार के बोला तो ज़ात फंसी को घूरने लगा। मैं किसी से नहीं डरता और तेरी इस तरह चाबी देने से तो मैं हरगिज़ नहीं पीने वाला। आज़ाद फंसी की नेचर अच्छी तरह जानता था। वो सिर्फ हनैन के नाम से उसे जोश दिला रहा था। आज़ाद जब टेबल की तरफ झुककर स्ट्रे में सिगरेट मसल रहा था तब फंसी को शरारत सूझी। उसने मुकर्रम को इशारा किया, जिस पर मुकर्रम मुस्कुराया। आज़ाद वापस सोफे से टेक लगाकर बैठा तो अचानक मुकर्रम सोफे से उठा, मजबूती से आज़ाद के दोनों हाथों को पकड़कर काबू में किया। ये क्या जलालत है मुकर्रम, छोड़ मेरे हाथ। आज़ाद को अंदाज़ा हो गया वो दोनों उसके साथ क्या करने वाला थे। इससे पहले वो अपने हाथ मुकर्रम से छुड़ाता, फंसी आज़ाद का मुंह पकड़कर बोतल उसके मुंह में अंडेलने लगा। बस तेरे सारे भरम और नखरे निकालने का एक ही तरीका है। फंसी उसके मुंह में शराब अंडेलता हुआ बोला। जब आधी बोतल हो गई और आज़ाद का चेहरा सुर्ख होने लगा, उसे जोर का फंदा लगा। तब फंसी ने उसके मुंह से बोतल निकाली और मुकर्रम ने उसके हाथ छोड़े। 1 नंबर के हो तुम दोनों। आज़ाद ज़ोर ज़ोर से खांसता हुआ इन दोनों को बड़ी सी गाली देकर गुस्से में देखने लगा, जबकि फंसी और मुकर्रम दोनों ही अपनी हरकत और आज़ाद की हालत पर हंस रहे थे। सामने स्क्रीन पर हीरो साहिब अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए हीरोइन के होंठों की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब्बास ने गौर से स्क्रीन को देखा। उसके बाद उसकी नज़र कोमल पर गई, जो अपने होंठों का पाउडर बनाकर मगन अंदाज में इस सीन के अंदर बुरी तरह खोई हुई थी। अरे बंद क्यों कर दिया, कितना अच्छे से मजबूत पकड़ा हुआ था अंकल ने आंटी को, वो भी बगैर हाथ लगाए। अब्बास ने एलईडी पावर ऑफ किया तो कोमल का तसलसल उठा। वो अब्बास को देखते ही गुस्से में पूछने लगी, बच्चे नहीं देखते हैं ऐसे सीन्स, बहुत बुरी बात होती है। मैं कार्टून की सीरीज़ लाया हूँ, तुम वो देखो। अब्बास तहम्मुल से कोमल को समझाने लगा। कार्टून तुम देखो, कौमी बेबी वही पकड़म पकड़ाई देखेगी, दोबारा लगाओ। कोमल अब्बास पर बिगड़ती हुई बोले। लफ्ज़ पकड़म पकड़ाई पर अब्बास ने मुश्किल खुद को कहकर लगाने से बाज रखा। देखो कौमी, तुम एक छोटा बेबी हो, ऐसी चीज़ें बेबीज बिल्कुल नहीं देखते, ओके। अब्बास उसे प्यार से बहलाने लगा कि आप लोग इसको चढ़ जाते और पूरा घर सर पर उठा लेती। उसे संभालना एक बड़ा मसला था। अगर बेबीज ऐसी चीज़ें नहीं देख सकती है तो फिर स्क्रीन पर ऐसी चीज़ें दिखाते क्यों हैं? कोमल ने बहुत परेशान होकर अब्बास से पूछा था। अब्बास ने बेसख्ता अपना हाथ माथे पर मारा। ये बड़े बच्चों के लिए होता है, स्क्रीन पर ये सब बड़े बच्चे देखते हैं। अब्बास की बात सुनकर कोमल जोर में पड़ गई और अब्बास टेबल पर रखी बोतल से पानी पीने लगा। बड़े तो तुम भी हो गए हो, इसलिए तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूंछें उगाई हैं, फिर तो तुम भी देखती होगी ये पकड़म पकड़ाई। जितने आराम से कोमल ने अब्बास से पूछा था, उतनी ही मुश्किल से अब्बास ने पानी हलक से नीचे उतारा। नहीं, मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं देखता। अब तुम बताओ, तुम्हें कार्टून देखना है या वापस घर जाना है? अब्बास आंखें दिखाता हुआ से पूछने लगा। कार्टून देखना है, कोमल मासूम शक्ल बनाकर आहिस्तगी से बोली। अब्बास अब ड्रॉज में से रखी हुई सीरीज निकालकर कार्टून लगाने लगा। अब्बास एक बात पूछूं? कोमल को जैसे कुछ याद आया। हाँ पूछो। अब्बास रिमोट हाथ में लेता हुआ कोमल को देखने लगा। तुम वो सब कुछ देखते नहीं हो, मगर करना तो आता होगा ना, बड़े जो हो गए हो तुम। कोमल बिल्कुल सीरियस होकर अब्बास से पूछने लगी और आप इसको देखते हुए इसके जवाब का इंतजार करने लगी। हाँ आता है, मगर ऐसा करते भी नहीं है। अब्बास उसको देखकर नजरें चुराता हुआ बोला। कमल अपने गाल पर शहादत की उंगली मारती हुई आंखें ऊपर कर किए कुछ सोचने लगी। अगर ऐसा करना आता है तो कर क्यों नहीं सकते? कौमी बेबी को लगता है अब्बास और कौमी बेबी ऐसा कर सकते हैं, इन अंकल आंटी के जैसे। अब्बास कोमल की बात सुनकर गौर से कोमल को देखने लगा। नहीं, कोमल और अब्बास फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा सिर्फ हस्बैंड और वाइफ करते हैं। अब्बास उसे देखकर संजीदगी से बोला। कोमल उठकर उसके पास आई। तो फिर कौमी को भी अपनी वाइफ बना लो जल्दी से।
कोमल उसे ज़िद्दी अंदाज में बोली। क्यों, कौमी बेबी को ऐसे पकड़म पकड़ाई खेलना है? अब्बास अपनी हंसी रोकता हुआ कोमल से पूछने लगा। हाँ, सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ। कोमल खुश होकर अब्बास से बोली तो अब्बास हंस दिया। 1 घंटे हनैन ने इंतज़ार किया। अज़हर रूम में वापस नहीं आया। वो अभी भी अपने दोस्तों को कंपनी दे रहा था। हनैन उठकर शावर लेने चलेगी। वो शावर लेकर निकली, दोबारा अपना स्वेटर पहनकर बालों को ड्राई करने लगी। तब अज़हर का मोबाइल बजने लगा। अज़हर के मोबाइल पर शाहनवाज की कॉल आ रही थी। हनैन ने कुछ सोचकर कॉल रिसीव कर ली। अज़हर कहाँ पर है, तुम ठीक हो? हनैन को सलाम का जवाब देकर शाहनवाज ने इससे सवाल किया। जी मैं ठीक हूँ सर। आज़ाद अपने फ्रेंड्स के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद है। आप ही कैसी हैं? आईमी में परेशान हो रही होंगी। हनैन शाहनवाज से नवीन के बारे में पूछने लगी। उसके दोस्त क्या कर रहे हैं इस वक्त फ्लैट में? नवीन ठीक है, मैं ऑफिस के घर के लिए निकल रहा था। जहाँ से ऑफिस के मतलब कुछ ज़रूरी बात करनी थी। रुको, मैं थोड़ी देर में वहीं पहुँचता हूँ। शाहनवाज को हनैन की मौजूदगी में आज़ाद का अपने दोस्तों को फ्लैट में बुलाना अजीब लगा। वो तो कभी फंसी और मुकर्रम को घर पर नहीं लाता था। दूसरा, शाहनवाज अगर घर जाता तो नवीन हनैन के मतलब पूछ पूछ कर सर खा जाती। इसलिए उसने घर जाने के बजाय आज़ाद के फ्लैट की तरफ कार का रुख किया। शाहनवाज से बात करके हनैन ने सोचा ज़ाद को शाहनवाज का मैसेज दे दिया। अच्छा है, उसे देखकर ज़ाद के दोस्त भी वहाँ से जल्दी से चले जाएंगे। घड़ी इस वक्त शाम के 7 बजा रही थी। ज़ाद को 2 घंटे हो चुके थे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए। तब हनैन बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर लिविंग रूम अबूर करती हुई ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंची। उसे सोफे पर बैठे हुए ज़ाद की पुष्ट नजर आई। उसने ज़ाद को मतवज्जा करने के लिए दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया। तब अंदर होने वाली गुफ्तगू पर उसका हाथ वहीं रुका। तूने बताया नहीं यार, तेरी वाइफ की नाराज़गी तुझसे दूर हुई है कि नहीं? कुछ बताना यार, कैसा लग रहा है शादी करके? क्या फीलिंग्स हैं आ रही हैं तेरे को? मुकर्रम झूमता हुआ आज़ाद को देखकर पूछने लगा। आज़ाद ने मदहोशी से हंसते हुए सामने रखे गिलास को उठाकर मुंह से लगाया। बेशक इस वक्त आज़ाद की पुष्ट हनैन की तरफ थी, मगर वो आज़ाद के सामने रखे हुए गिलास को देख सकती थी, बल्कि वह गिलास में मुझे शराब पी रहा था। हनैन का दिल टूट गया। छोड़ बीवी की बातें कौन पूछता है? आज़ाद तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता जिससे तेरा अमरीका में चक्कर चल रहा था। फसी जो के साथ के सामने बैठा था, वो हनैन को देख चुका था, इसलिए अजली कमीनगी का मुजाहरा करते हुए साथ से पूछने लगा। फसी, क्या ये ज़रूरी है कि तू जब भी मुंह खोलेगा घटिया बातें बोलेगा? शी वॉज नॉट माई गर्लफ्रेंड। स्टूपिड, अच्छी दोस्त थी वो मेरी। आज़ाद की आवाज़ की लड़खड़ाहट से अंदाज़ा हो रहा था वो नशे में बिल्कुल चूर हो चुका है। उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। हनैन वापस रूम में जाने के लिए मुड़ी। अच्छी दोस्ती जब भी तूने डांस क्लब में उसका स्कर्ट खींचा था साले। फसी ने दोबारा आवाज़ का मुजाहरा किया, जिस पर हनैन के कदम एकदम थमे। चुप कर जा फसी, इस वक्त भी मैंने ड्रिंक की हुई थी कमीने, बिल्कुल इस तरह जिस तरह अभी तुम दोनों खबीसों ने मुझे पिलाई है। इस वक्त भी गलती मेरी नहीं थी। आज़ाद फसी को बोलता हुआ सर सोफे से टेकने लगा। आंखें बंद करके झूमते हुए मुकर्रम ने आंखें खोली और आज़ाद को पुकारकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। अजहार ने सर घुमाकर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर देखा तो हनैन को खड़ा पाया। हनी मेरी जान। अजहार ने हनैन को देखकर सोफे से उठने की कोशिश की। अगर वो टेबल का सहारा रहता तो चिकने मार्बल पर उसका पैर स्लिप होता। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो चलता हुआ हनैन के पास आया। हनैन ने अफसोस भरी निगाह इस पर डाली। उसने थोड़ी देर पहले ही हनैन से कहा था कि वो अब ड्रिंक नहीं करेगा। आज़ाद हनैन के कंधों पर दोनों कुनियाँ टिकाए अपने हाथ पीछे ले जाकर नीमा आंखों से उसे देखने लगा। है माई लाइफ, माई ब्यूटीफुल वाइफ, प्रॉमिस यार मैंने खुद नहीं पी इन दो चो। आज़ाद बोलता हुआ रखा। हनैन के कंधे से अपना हाथ हटाकर होंठों पर उंगली रखता हुआ खुद को चुप करवाने लगा। बैड मैनर्स। आज़ाद, वाइफ के सामने नो चीप लैंग्वेज, ओनली प्यार वाली बातें। न जाने नशे में क्या क्या बोल रहा था। हनैन को उससे घबराहट होने लगी। उसने एक नज़र फसी और मुकर्रम पर डाली। वो दोनों भी इसी तरह नशे में धुत थे। इन कुत्तों को मत देखो अभी, यहाँ अपने हबी को देखो जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। यू नो, बहुत गुस्सा आया था मुझे जब तुमने कहा कि तुम अलग बेडरूम में रहना चाहती हो। मतलब ये कोई सेंसिबल बात है यार? शादी करने के बाद अलग अलग बेडरूम्स? मालूम है हमारी वेडिंग नाइट पर अगर तुम बेहोश नहीं होती तो मैं तुम्हें। बोलने के साथ वह हनैन के होंठों पर झुकने लगा। आज़ाद, पीछे हटो। हनैन ने एकदम अपना चेहरा पीछे किया। वो इस वक्त बिल्कुल अपने हवासों में नहीं था। हनैन को उसे डर लगने लगा। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे हटाने लगी। व्हाट्स द मैटर विद यू लिटिल गर्ल? किस करने के लिए झुकना तो मुझे पड़ रहा है? तुम क्यों इतने इरिटेट हो रही हो मुझसे? हाँ। हनैन किस तरह पीछे करने पर वो हनैन को मजबूती से कमर से पकड़ चुका था और हनैन की गर्दन पर झुकने लगा। अज़ार, ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो प्लीज़। वो इस वक्त नशे में बिल्कुल बेहाल था। हनैन जोर जोर से उसके सीने पर हाथ मारती हुई चीखी। मुकर्रम अपने नशे से बंद होती आंखें पूरी तरह खोलकर तमाशा नहीं लग गया।
तमाशा देखने लगा, जबकि फंसी हंसता हुआ सोफे से उठ रहा मोबाइल से अज़ाद की वीडियो बनाने लगा। प्यार कर रहा हूँ हनी डार्लिंग, प्यार करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। एक हाथ से हनैन को कमर से पकड़कर दूसरे हाथ से वो स्वेटर खींचता हुआ अपने होंठ हनैन के गर्दन पर रखने की कोशिश कर रहा था। वो पहले ही नशे में धुत था, मजीद अपना वजन हनैन पर छोड़ा तो हनैन खुद को संभाल नहीं पाई, बुरी तरह फर्श पर पीछे की तरफ गिरी, साथ ही हाथ भी उसके ऊपर गिरा। अब वो उसके स्वेटर के बटन खोलने के बजाय तोड़ चुका था और हनैन की गर्दन सुर्ख कर चुका था। हनैन को रोना आने लगा। आज़ाद उठ यार, पीछे हट। हनैन को रोता हुआ देखकर मुकर्रम आज़ाद को पकड़ता हुआ पीछे हटाने लगा। वो बीवी है मेरी बास्टर्ड, तू कौन है। अब आज़ाद मुकर्रम पर बिगड़ने लगा। तब उसकी नज़र फंसी पर पड़ी। आज़ाद ने झपट कर उससे मोबाइल छीना, दीवार पर दे मारा और एक मुक्का फंसी को प्रसिद्ध किया। मुकर्रम झुक कर नीचे गिरी हुई हनैन को उठाने लगा। डोंट टच माई वाइफ, आज़ाद मुकर्रम को धक्का देता हुआ बोला। अब वो खुद रोती हुई हनैन को देख रहा था। चलो निकलो मेरे फ्लैट से, सालों बहुत ड्रामा हो गया तुम लोगों की वजह से। वो नशे में कर फंसी मुकर्रम पर चीखा। अब वो हनैन के आंसू साफ करना चाहता था। पीछे हटो ज़रा, तुम पूरे के पूरे जानवर हो, बिल्कुल अपने इन दोस्तों के जैसे। बात मत करना मुझसे। हनैन आज़ाद के हाथ अपने चेहरे से हटाकर से पीछे धक्का देती हुई गुस्से में चीखी। अब वो यहाँ से जाने का इरादा रखती थी। उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। शाहनवाज डोरबेल बजाने वाला था। दरवाज़ा खोलने पर उसका हाथ वहीं रुक गया। वो अपने सामने खड़ी हनैन को देखने लगा। हनैन ने शाहनवाज को देखा तो एकदम खटकी और अपने आंसू साफ करने लगी। क्या हुआ। शाहनवाज गौर से हनैन को देखता हुआ पूछने लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो आंसू पूछने के बाद अपने स्वेटर को सही कर रही थी। मुझे घर जाना है, हनैन ने सिर झुकाकर इतना ही बोल पाई। आज़ाद कहाँ पर है, शाहनवाज ने पूछा ही था। आज़ाद उसे आता दिखाई दिया। डैड आप यहाँ। आज़ाद के चलने के स्टाइल और बात करने के अंदाज से शाहनवाज समझ कर उसने ड्रिंक की है। क्यों रो रही है ये, क्या हुआ है इसको।